Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on return on mutual fund schemes. So let us see data given in this scenario. So we are given the financial literacy and growth in mutual fund industry has fascinated young investors to park their surplus funds in attractive mutual fund schemes. Miss Monica also wants to invest in mutual fund schemes. She has collected data about different mutual fund schemes available in the market as given under. तो आपको डिफरेंट स्कीम्स दी हैं. So first it is Sun regular income plan of Sun Mutual Fund Company. So the fund has a net asset value of ₹20 at the beginning of current month and has distributed income and capital gain of ₹0.0375 and ₹0.03 per unit respectively during the month, and then ended the month with an NAV of ₹20.06. Then second we are given this one is our cash distribution plan of Moon Mutual Fund. The fund has NAV of ₹12.25 at the beginning of current financial year. The fund has distributed in cash ₹1.25 as dividend and ₹1 as capital gain per unit. NAV is ₹13 per unit at year end. तो आपको डिफरेंट म्यूचुअल फंड की स्कीम्स दे रखी हैं. तो नंबर थर्ड is our dividend reinvestment plan of Star Mutual Fund. The fund has NAV of 12.25 per unit at beginning of current year. Fund has distributed dividend of 1.25 per unit and capital gain of 1 per unit. The distributions are reinvested at an average NAV of ₹12.50 per unit. NAV is ₹13 per unit at year end. Fourth one is given equity plan of Gold Mutual Fund. So it is an equity-based mutual fund plan in which initial issue expenses and annual recurring expenses are 6% and 2% respectively. The investors require minimum return of 15% for this plan. Fifth is growth plan of Silver Mutual Fund. So it is a hybrid mutual fund plan in which initial issue expenses are 7% and the mutual fund scheme will earn 17%. The investor requires a minimum return of 14% from the fund. Now different MCQs are given. Number 1, they are asking calculate annual effective return on the regular income plan of a Sun Mutual Fund. तो जो नंबर 1 स्कीम है आपके सन म्यूचुअल फंड, उसकी आपको कैलकुलेट करनी है एनुअल इफेक्टिव रिटर्न. तो लेट अस सी MCQ number 1. So in this we have to calculate annual effective return on the regular income plan of a Sun Mutual Fund, which is जो फर्स्ट प्लान is given. This is a Sun Mutual Fund. इसमें आप देखिए आपको डाटा मेंशन किया है द फंड हैज NAV of ₹20 at the beginning of current month. तो आपको NAV दी है इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ ₹20 एंड इट इज गिवन फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम. फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशंस मेंशन किए हैं बाय दिस फंड. डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, डिविडेंड इनकम है और कैपिटल गेन इनकम, जिसको हम C1 से डिनोट कर रखे हैं. ये भी आपको पर यूनिट लिए हैं 0.0375 and 0.03. And then it is given what is NAV at end of month 20.06. फिर आपको दी है NAV आफ्टर 1 month. ये है आपकी एट एंड ऑफ मंथ. इट मीन्स दिस डाटा इज ओनली फॉर 1 month. NAV इज 20.06. तो इससे पहले आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मच इज रिटर्न पर मंथ. इसमें आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस NAV में जो डिफरेंस है फर्स्ट पीरियड माइनस NAV इन 0 अपॉन NAV 0 टाइम्स 100. दिस विल बी रिटर्न फॉर 1 month. तो डिविडेंड इज 0.0375 प्लस 0.03 प्लस क्लोजिंग NAV 20.06 माइनस 20 upon 20 times 100. So let us see how much is this return for 1 month. 0.0375 plus 0.03 plus 20.06 minus 20 times 100 divided by 20. So this is coming to 0.6375%. ये आपकी आ गई है पर मंथ. बट आपको आंसर देना है एनुअल इफेक्टिव रिटर्न. Now you can calculate what is your annual effective return. It means effective return per annum
विच इज इक्वल टू, तो ये पर मंथ है तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे जो 0.6375, जिसे रिटर्न 1 मंथ, सो वर्क विल बी फॉर 12 मंथ्स, सो इनटू 12, तो आंसर इज 7.65%। ये आपकी रिटर्न है पर एन। So again you can see which option is correct. Answer is option number C. Again we have second MCQ. So in this case we have to calculate annual return on cash dividend plan of Moon Mutual Fund. So if Miss Monica has purchased 300 units of the mutual fund at the beginning of current year. तो ये आपका सेकंड प्लान दिया है आपको मून म्यूचुअल फंड, उसकी रिटर्न आपको कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस सी दिस इज योर मून म्यूचुअल फंड। अब इसमें आपको मेंशन किया है कि मिस मोनिका ने परचेज किए 300 यूनिट्स एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो दिस इज बिगिनिंग ऑफ ईयर यानी एंड ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने जो परचेज किए हैं दिस इज गिवन 300 यूनिट्स। तो इस फंड में देखो आपको मेंशन की कि एन ने भी इनका बिगिनिंग ऑफ द ईयर बाद एन ने भी आपको मेंशन की है इन जीरो पीरियड 12.25। देन दिस फंड है डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने किया है गिवन 1.25, कैपिटल गेन इज 1 रुपी, एंड देन इट इज आल्सो गिवन एन ने भी एट द एंड ऑफ ईयर इज ₹13। सो एन ने भी आफ्टर 1 ईयर इट इज 30। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 300 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं, तो आप रिकरेंट चाहे 1 यूनिट की कैलकुलेट कीजिए या 300 के, आंसर आपका सेम रहेगा परसेंटेज में। तो बचेगा रिटर्न पर एनम। ये आपका कैश डिविडेंड प्लान है, जो डिविडेंड आपको मिल रहा है ये कैश में मिल रहा है। तो रिटर्न का फार्मूला सेम है आपका D1 + C1 + NAV1 - NAV0 अपॉन NAV0 into 100. So here data is already for 1 year. So you will get a return dividend 1.25 plus 1 closing NAV 13 minus 12.25 upon 12.25 times 100. So let us see how much is this return. 2.25 plus 13 minus 12.25 divided by 12.25 into 100. This is 24.25%. This is our annual return. Then you can see which option is correct. Answer is option number C. So then we have MCQ number 3. So in this case we have to calculate annual return on dividend reinvestment plan of Star Mutual Fund. If Miss Monica has purchased 300 units of mutual fund at the beginning of current year. तो स्टार म्यूचुअल फंड आपका नंबर खा गया है, ये था आपका डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान। So let us see MCQ number 3. So this is our स्टार म्यूचुअल फंड। तो इसमें देखो आपको डाटा मेंशन किया है। सो इन्वेस्टर है परचेज नंबर ऑफ यूनिट्स 300 इन द बिगनिंग, और इस फंड में भी आपको मेंशन की है NAV 12.25 एंड देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। सो डिविडेंड इज 1.25, कैपिटल गेन इज 1, but it is given that these distributions are reinvested at an average NAV of 12.50, पर इसको आपने रीइन्वेस्ट कर दिया है, these are reinvested, so at the rate of NAV, तो उस टाइम NAV आपकी चल रही थी 12.50, and then it is given closing NAV at year end is 13, फिर आपको फर्स्ट ईयर के एंड में NAV आपको मेंशन की है जिस इज 13। इसमें आपको कैलकुलेट करना है जब आप डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करते हैं उससे कितने यूनिट्स आपको मिलेंगे। तो आपको पहले देखिए टोटल डिविडेंड, तो किसी का जो एडिशनल यूनिट्स क्या एन, तो फार्मूला बन जाता है टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपने रीइन्वेस्ट किया है डिवाइडेड बाय NAV एट दैट टाइम। तो इसमें आपके पास 300 यूनिट्स हैं, तो टोटल डिविडेंड आपका बन जाएगा इनको 1.25 + 1 2.25, और उसको आप री इन्वेस्ट करने हैं एट द रेट ऑफ 12.50, तो ये आपके एडिशनल यूनिट्स आ जाएंगे। तो लेट अस सी 300 into 2.25 डिवाइडेड बाय 12.5, दिस इज 54 यूनिट्स। तो इट मीन्स अब बाय ईयर एंड आपके पास टोटल यूनिट्स हो जाएंगे 354। अब आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं।
फार्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स एक एंग NO प्लस गैर का N इंटू NAV एक एंग माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की थी, एक बार नंबर ऑफ यूनिट्स इनका बिगनिंग इंटू NAV इन जीरो, जिस आंसू का आगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू ओपनिंग NAV टाइम्स 100 और ईयर आपका 1 है, तो दिस विल बी एनुअल रिकरेंस। तो लेट अस सी, अब टोटल यूनिट्स हैं आपके 300 प्लस 54, इनकी क्लोजिंग NAV है 13। बिगनिंग में आपने परचेज किया थी 300 यूनिट्स, उस टाइम आपके NAV थी 12.25। लेट अस सी हाउ मच इज दिस वैल्यू 300 इंटू 12.25, ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन गई 3675 इंटू 100। So return is how much? 354 into 13 minus 3675, 927 upon 3675 times 100. So this return is 25.22%. So again you can see which option is correct. Answer is option number B is our correct. देखिए आप म्यूचुअल फंड का कॉपी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उसकी सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं सेपरेट प्लेलिस्ट में, तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो नाउ लेट अस सी MCQ नंबर 4। सो इन दिस दे आर आस्किंग सो हाउ मच शुड द इक्विटी प्लान ऑफ गोल्ड फंड, अभी आपको दिया है 4th जो प्लान है आपका इक्विटी प्लान है गोल्ड फंड का, इट शुड अर्न टू प्रोवाइड 15% रिटर्न टू इन्वेस्टर मिस मोनिका। तो इसमें देखो आपको मेंशन किए हैं गोल्ड फंड में जो इक्विटी प्लान है आपका, इसमें आपके इशू एक्सपेंसेस हैं आपके 6% और एनुअल जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं 2% और इन्वेस्टर को रिकरिंग चाहिए 15%। तो इसका पहले फार्मूला देखते हैं बकेट जैकमैन। तो आपको कई बार दो तरह की रिकरेंस होती है, एक होती है अब आपकी रिकरन रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर, लेकिन से दिस इज स्मॉल आर, रिकरन रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर। फिर एक आपको मिलती है कि रिकरन विच इज अचीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, रिकरन अचीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी को रिकरन मिलती है जो उसकी NAV होती है जीरो पीरियड में, उसमें से हम इशू एक्सपेंसिव माइनस कर रहे हैं। तो लेट्स से NAV है आपकी जीरो पीरियड में, वो आपको मेंशन की है। अब जो इशू एक्सपेंसिव है उसको A से शो कर रहे हैं परसेंट ऑफ इशू एक्सपेंसिव। फिर कंपनी से कुछ एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसिव भी होते हैं, उसको हम जनोट कर रहे हैं B से, जिसे परसेंटेज ऑफ एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसिव। तो इट मीन्स अब जो म्यूचुअल फंड कंपनी को रिटर्न मिलती है उसमें से आपने उसके एनुअल एक्सपेंसेस भी डिडक्ट करने हैं। फिर आपने कैलकुलेट करनी है जो इन्वेस्टर ने मनी इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्टर के लिए NAV है जीरो में, उसके ऊपर उसको कितनी रिटर्न मिल रही है। उसका फार्मूला ये बन जाता है, इन्वेस्टर की रिटर्न है R इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड कंपनी को देखो NAV कितनी है, NAV जीरो, उसमें से माइनस हो गए उसके इशू एक्सपेंसिव, तो ये रह गई आपकी नेट NAV। इसको अब आपने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी कैपिटल R को इंटू कर दीजिए कैपिटल R, और उसमें से आपको ये एक्सपेंसिव भी है B एनुअल। तो ये नेट रिटर्न आ गई जो म्यूचुअल फंड कंपनी को मिल रही है ऑन नेट मनी विच इज इन्वेस्टेड। अब इन्वेस्टर ने अपनी रिटर्न कैलकुलेट करनी है जो उसने अपनी NAV इन्वेस्ट की थी, NAV जीरो, तो टाइम्स कर लीजिए आप 100, वो परसेंटेज आएगी। 100 नहीं भी करेंगे तो देखिए आपका डायरेक्ट चल रहा है तो आप डेसिमल्स में है तो आप 100 कर लीजिए, डेसिमल नहीं है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इट मीन NAV कैंसिल हो गई है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या किया है, इसमें आपको मेंशन किया है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड प्लान है, इसमें इशू एक्सपेंसिव हैं 6% और एनुअल एक्सपेंसिव आपको दिए हैं, इशू एक्सपेंसिव 6%, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसिव आ रहे 2%, and then it is given investor requires minimum return 15%, इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो है 15%। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट शुड बी द रिटर्न टू द म्यूचुअल फंड, सो दैट इन्वेस्टर कैसे गेस रिटर्न, इसमें जो कैपिटल R है ये आपका मिसिंग है, तो इसमें पुट कर रखे हैं, तो स्मॉल R है आपका 15% 0.15 इज इक्वल टू 1 माइनस है 0.06 इनको कैपिटल R ये आपका मिसिंग है माइनस 0.02। अब मैंने डेसिमल में कर लिया है सारा,
तो R आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस R माइनस 0.02 इज इक्वल टू 0.15 divided by 0.94 and this will go on this side. So capital R is equal to 0.15, 0.94 plus 0.02. So let us see how much it is. This is 0.15 divided by 0.94 plus 0.02. This is 0.1796 इंटू 100 कर लीजिए 17.96। तो राउंड ऑफ करके आपका आंसर बन गया है 18%। So now you can see which option is correct. So answer is option number B. So it means mutual fund company should earn return of 18%. So next let us see MCQ number 5. So in this case they are asking in case of growth plan of silver mutual fund. ये आपका फिफ्थ जो प्लान आपको दिया है, at what percent of annual recurring expense investor Miss Monica would be indifferent between investing in own and investing through mutual fund. ये भी इसी के बेस पर है, इसमें थोड़ा डाटा डिफरेंट है। तो एक ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड प्लान है जिसमें इनिशियल एक्सपेंसेस आपके हैं 7%। तो इसमें देखो आपको ए दे रखा है 7%। एंड यानी कि गिवन दैट एंड म्यूचुअल फंड स्कीम विल अर्न रिटर्न ऑफ 17%। इसमें जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड कंपनी की वो भी आपको मेंशन की है जिसकी कि 17%। एंड इट इज गिवन इन्वेस्टर रिक्वायर्स मिनिमम रिटर्न 14%। इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न भी आपको दी है 14%। सो नाउ दे आर आस्किंग इन दिस केस सो व्हाट शुड बी अवर एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है बी वो आपका मिसिंग है। तो इट मीन्स फार्मूला सेम है। अब आपको रिटर्न दी है 14, तो दिस विल बी 0.14 इज इक्वल टू 1 माइनस ए। इशू एक्सपेंसेस आपके 0.07 और जो रिटर्न है आपकी 17% 0.17 माइनस बी आपका मिसिंग है। सो दिस वी कैन कैलकुलेट। सो दिस विल बी 0.14 डिवाइडेड बाय 0.93 इज इक्वल टू 0.17 minus b. Okay, b will go here. So b is equal to 0.17 minus 0.14 divided by 0.93. So let us see 0.17 minus 0.14 upon 0.93. This is 0.15. So answer is 0.02. तो therefore मैक्सिमम जो आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं बी इट शुड बी इक्वल टू 2%। यू कैन से विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। So in this lecture we discuss case scenario based on return on mutual fund। पर के कॉपी वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।